Hello everyone. In this video, we will be talking about the concept of values. We will get to know what value system is और ये कैसे बनता है. So, values क्या है? See, values हमने सुना है कई बार, कि there is a person who is very honest. There is a person who is very responsible. या फिर ये जो person है, he is very much capable. ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल की वैल्यूज हैं. ये वो बेसिक कन्विक्शंस हैं जो अकॉर्डिंग टू दैट इंडिविजुअल उसे प्रेफरेबल हैं या उसके हिसाब से सोसाइटी में ये चीजें प्रेफरेबल हैं कि उसे ये लगता है कि एक इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए या एक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी इंसान को, तो वो उसकी वैल्यू बन जाता है. अब if you look at this definition here, it says basic convictions that a specific mode of conduct or end state of existence is personally or socially preferable. See, ये जो हम बोल रहे थे, honest होना, responsible होना, capable होना, ये क्या है? ये एक mode of conduct है कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को ऐसे कंडक्ट करना चाहिए, सो दैट मोड ऑफ कंडक्ट बिकम्स माय वैल्यू. लेकिन अगर आप ये लास्ट इन पर देखेंगे, फ्रीडम, हैप्पीनेस, दीज आर ऑल्सो वैल्यूज. आप कई बार देखते हैं कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं या खुश रहना चाहते हैं. कुछ लोग फ्रीडम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. दे वॉन्ट कि आई शुड बी एबल टू डू एवरीथिंग फ्रीली. कोई रोकने वाला नहीं होना चाहिए, मैं जो चाहूं वो कर सकूं. अब ये भी वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो वैल्यूज हैं, हैप्पीनेस, फ्रीडम, ये मोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. दिस इज व्हाट? दिस इज एन एंड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस कि मैं चाहती हूं कि ऐसा एंड में हो. दिस वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेल when I'll introduce to you the concept of terminal and instrumental values कि इन दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या है. For now, you can just understand कि आपकी जो कन्विक्शन है कि आपको कैसा कंडक्ट करना चाहिए, कैसा आपके हिसाब से आपको प्रेफरेबल है और कैसा सोसाइटी को प्रेफरेबल है, वो आपकी वैल्यूज होता है. कंपेयर टू द ऑपोजिट और द कन्वर्स ऑफ इट कि मेरे हिसाब से डिसऑनेस्ट होना इज नॉट गुड, ऑनेस्ट होना इज गुड. सो ऑनेस्टी बिकम्स माय वैल्यू. सो this is it. Now let's talk about features of values. See, there are certain things which are special about these values when we talk about them. One, that these reflect the standards of morality. आपको being honest or being punctual, being responsible, these are the morals of individuals. So these form the standards कि कैसा होना चाहिए एक इंसान को. नेक्स्ट इज इट्स मोस्ट सेंट्रल टू द कोर ऑफ अ पर्सन. ये एक इंसान के यू कैन से कोर, बिल्कुल अंदर की बात है. अगर कोई ऑनेस्ट है, वो हार्ड वर्किंग है नहीं है, दैट्स अनदर थिंग, बट वो ऑनेस्ट है. सो दिस इज समथिंग विच इज देयर इन द कोर ऑफ इट. अब नेक्स्ट इज परमानेंट. नाउ हम कई बार बोलते हैं बिहेवियर इट कैन बी मॉडिफाइड. When we talk about personality, we say that yes, it can be learned, it can be modified. But if I'll ask you, what about values? Can values be modified? Well, the answer should be yes, yet it is not that easy when it comes to values. Why? Again, because of the same thing. It's somewhere deeply inside you that, it's all embedded. So it's difficult to change. Generally, people resist to change. So somebody who is not honest, if I will tell him that you should be honest from now onwards, you should become honest, it's difficult for that person to adapt that behavior. अगर हम बात करें सिर्फ एक personality trait की, अगर मैं किसी से कहूँ कि आप you start listening to others very carefully. Okay, the person may just give a very good try and may start listening to the other person very actively. It's a little, comparatively easy. Now, if I would ask the same person, you start respecting somebody. Now, this may be difficult for him.
to, start respecting that other person if he is not that kind of a person who respects others. So that is value. That is why we say, it's relatively permanent. There are two attributes, which are important when you talk about values. One is content and another is intensity. Content kya hai? When I say that this particular mode of conduct is important for me, अगर मुझे लगता है कि being honest is important, वो एक ऐसा mode of conduct है जो मेरे हिसाब से important है. So वो content है. Intensity is how important I think that mode of conduct is. मेरे हिसाब से honest होना अच्छी बात है. कितनी अच्छी बात है? बहुत जरूरी है कि मैं honest हूं या थोड़ा कभी कभी चलता है कि अगर हम ऑनेस्ट नहीं है. सो व्हाट इज दैट इंटेंसिटी? ऐसा नहीं है कि कोई इंसान पूरे तरीके से डिसऑनेस्ट होगा या पूरे तरीके से ऑनेस्ट होगा. व्हाट इज दैट इंटेंसिटी? दैट इज ऑल्सो अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर. आपने ये टर्म कई बार सुना होगा, वैल्यू सिस्टम. कहते हैं इसका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा है. व्हाट इज दैट वैल्यू सिस्टम एक्चुअली? अभी जो हमने बात की कि कंटेंट यानी कि आपके लिए क्या क्या वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, एंड देन इंटेंसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है. तो अगर मैं कहूं बीइंग ऑनेस्ट इज वन एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल इज अनदर, राइट? अगर एक इंसान के हिसाब से ऑनेस्ट होना ज्यादा जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल होना उतना जरूरी नहीं है, और दूसरा इंसान जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना ज्यादा जरूरी है, ऑनेस्टी होनी चाहिए बट उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी रिस्पॉन्सिबल होना है. अब ये दोनों लोग दोनों ही ऑनेस्ट भी हैं, रिस्पॉन्सिबल भी हैं, लेकिन इंटेंसिटी का डिफरेंस है. अब जब हम इनकी इंटेंसिटी के हिसाब से इनको एक हायरार्की में लाते हैं, इनको रैंक करते हैं, that thing tells you what is the value system of that particular individual. So this is how you can get to know the values of an individual, the value system of an individual. So that is all for today's class. Thank you.